Today we are going to study about first order kinetics. That is, we can derive the expression for the rate law of first order reactions. What are first order reaction? A first order reaction is that in which the reaction rate is determined by the change of one concentration term of reactant only. That is, there is only one molecule whose concentration changes during the chemical reaction. Suppose A is a reactant. It changes into product B plus C. If initial concentration of A reactant is small a, naturally initial concentration of B and C product are 0, 0. After time t, what happens? X moles of A is converted into product. तो A का रिमेनिंग कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? इट इज़ A माइनस एक्स. और एक मोल A से एक मोल B और एक मोल C बन रहा है, तो X मोल से कितने बनेंगे? X मोल ऑफ B एंड X मोल ऑफ C. तो T टाइम के बाद कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? A का A माइनस एक्स, B का X और C का X. As we know, rate of a chemical reaction dx upon dt is equal to kCa because it is first order reaction. So only one reactant. dx upon dt is equal to kCa का concentration A minus x. Or this is equation number 1. Or we can write dx upon A minus x is equal to k dt. Simple. It is equation number 2. Now we have to integrate equation number 2. On integrating equation number 2, dx upon A minus x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग A minus x. So it is minus log A minus x. K dt. K is a constant और dt का इंटीग्रेशन kt. So it is kt plus I, where I is the integration constant. So we have minus log A minus x is equal to kt plus I, equation number 3. Now when t is equal to 0 initially, then x is equal to 0. So substituting the value in equation 3, we get I is equal to minus log A. I is equal to minus log A. अब I की वैल्यू समीकरण इक्वेशन 3 में रखने पर माइनस लॉग A माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी. आई की जगह हमने क्या रखा? माइनस लॉग A. अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग A को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस लॉग A. तो ये हो जाएगा log A माइनस log A माइनस एक्स. सो इट इज़ log A अपॉन A माइनस एक्स. टी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इट इज़ 1 over t. सो द k इज इक्वल टू 1 over t log A अपॉन A माइनस एक्स. इक्वेशन नंबर 4. k इज इक्वल टू 1 upon t log, it is ln. ln means log to the base exponential A upon A minus x. इस log to the base exponential को चेंज करेंगे किसमें? log to the base 10 में. कैसे करेंगे?
मल्टीप्लाइंग बाई 2.303। लॉग एक्सपोनेंशियल को अगर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू log 10। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, इक्वेशन नंबर 5। दिस is the rate equation for first order reactions. Now ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx plus c. If a graph is plotted between t on x-axis and log a upon a minus x on y-axis, we get a straight line whose slope is 2.303 upon k. तो यदि हमको डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रिमेनिंग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन a माइनस एक्स मालूम है या इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम है और x की वैल्यू मालूम है, तो हम log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन है, और उस लाइन का जो स्लोप है dy बाई डी एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के। और इससे हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टी को के की जगह ले गए और के को टी की जगह ले गए, तो टी इज इक्वल टू वाई, एम की जगह हो गया स्लोप की जगह 2.303 अपॉन के, और एक्स की जगह हो गया लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी की जगह 0। सो इंटरसेप्ट नहीं है, यानी ये स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से या मूल बिंदु से होकर पास होगी। इस तरीके से हम k की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 and 5। 4 इज k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ln a अपॉन a माइनस एक्स, या इक्वेशन 5 k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a upon a minus x log to the base 10 are known as first order rate equations. Equation 4 can also be written as equation 4 log a upon a minus x is equal to kt. See, log a upon a minus x is equal to t को उधर ले जाएंगे kt, या दोनों तरफ से हम इसका एंटी लॉग ले लें तो a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू e एक्सपोनेंशियल kt। अब यदि हम इसको रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो a माइनस एक्स अपॉन ए हो गया, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी, माइनस के टी। अब a माइनस एक्स अपॉन ए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए, 1 माइनस एक्स अपॉन ए। तो इससे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस
एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. ये क्या है? इट इज इक्वेशन नंबर 6. अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम प्रॉपर लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी. प्रॉपर लिमिट मतलब x की वैल्यू है x1 से x2 तक, t की वैल्यू t1 से t2 तक. दिस मीन्स at time t1 the concentration of product is x1 and at time t2 the concentration of product is x2. t1 टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन x1 है और t2 टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन x2 है. तो क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन t2 माइनस t1 लॉग a माइनस x2 अपॉन a माइनस x1. This is equation number 7. K is equal to 1 upon T2 minus T1 log A minus X2 upon A minus X1. It is possible to calculate the rate constant from any pair of concentration measurements. Means if we measure the concentration of product at two different times, T1 and T2, then we have the value of T1, T2, X1, X2 and initial concentration A. So we can calculate the value of rate constant or velocity constant. So this is the formula for first order chemical reaction. Now what are the characteristics of first order reaction? K is equal to 1 upon T ln A upon A minus X. यहाँ से हम अगर वेलोसिटी कांस्टेंट K की यूनिट कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन टाइम इनटू A की यूनिट मोल पर लीटर और A माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन की यूनिट भी मोल पर लीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो इट इज़ 1 ओवर टाइम. तो K की यूनिट क्या होगी? टाइम इनवर्स. टाइम में इनवर्स मीन्स सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स और आवर इनवर्स. फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट इज टाइम इनवर्स, दैट इज मिनट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और आवर इनवर्स. दिस इज द यूनिट. अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन चूजन. इसकी यूनिट में कहीं भी कंसंट्रेशन की यूनिट नहीं आई है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट पर, या वेलोसिटी कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन चूजन. अब the time taken to complete a certain fraction of a reaction is independent of the initial concentration of the reactant. देखिए, किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेफिनेट फ्रैक्शन, ये 1/2, 3/4 वट एवर इट में भी, को पूरा होने में लगा टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. कैसे? हम जानते हैं T इज इक्वल टू टाइम 2.303 अपॉन K लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, है ना. तो देखिए T जो है ये T इज इक्वल टू 1 अपॉन K log A upon A minus X. So
T इज इक्वल टू 1/k. T हम निकाल रहे हैं T हाफ. T हाफ मतलब when the reaction is half completed, that is half of the reactant converted into product. So T half 2.303/k log initial concentration A upon A minus X. X कितना हो गया? A/2. तो X की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A/2. इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा प्रोडक्ट में चेंज हो गया. सो X इज इक्वल टू A/2. तो हमने क्या लिखा? T की जगह T हाफ और X की जगह A/2. सो T हाफ इज इक्वल टू 2.303/k. A माइनस A/2 क्या रह गया? A/2. A से A कैंसिल हो गया. सो इट इज log 2. log 2 की वैल्यू होती है 0.3010. सो 0.3010 को हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.693/k. T हाफ इज इक्वल टू 0.693/k. इक्वेशन नंबर 8. तो हमने क्या देखा? इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है. सो वी कैन से द टाइम टेकन टू कंप्लीट half of the reaction or any fraction of a reaction is independent of the initial concentration of the reactant. There are many examples of first order reactions like hydrolysis of dextrose, or we can say कल हमने देखा था inversion of cane sugar. C12H22O11 plus H2O gives C6H12O6 glucose plus C6H12O6 fructose. Glucose is dextrorotatory and fructose is levorotatory. And the mixture of both is levorotatory. Another example is hydrolysis of ester. CH3 COO CH3 methyl acetate plus H2O acetic acid plus methanol. These are the examples of first order chemical reaction. So here we see how the first order reaction is studied and how we can establish rate laws for such reactions. On next one, we study second order chemical reactions. Thank you.